Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. NIT University admission policy has got changed. Test policy also get changed. 50% weightage of your first year percentage and 50% weightage of your test. These all are the changes made by NIT for 2020 year. Okay, the very new change which has been announced by NIT University is about computer-based test. It's not online, but it's computer-based test. All right. First, talk about something about NIT University fields and about the seats, and then I will be coming towards that portion of the computer-based tests. So this is the official notice of NIT. No one is allowed to sit or give exams who's got less than 60 percentage in first year exams. Without grace marks, if your percentage is less than 60, you cannot apply in NED. From 1st of July, you can see here, the NED university forms will be available online. You can fill it complete online. Okay. These all are the documents that you have to submit later on. These all are the fields which you can apply. Pre-engineering students can apply in all departments. Okay. Pre-medical students, biomedical development studies, English linguistics, and BS economic and finance. Only these departments, pre-medical students can apply, and computer students can apply in all these departments. You can see on the screen. Computer science with stats, development studies, management sciences, English linguistics, computational finance, BS economic and finance, commerce and arts. These all are the things, and the NED test will be held on first week of August 2020. This is the official notice by NED University. You can check on their website. All right. Now I'll be showing you about the fields. Okay. Sorry. These all are the NED University available seats for the departments. There, these R1A, R1B are the categories basically. Okay, categories means these are the different categories. R1 stand for a different thing, so these all are the categories. SF is stand for self-finance. There you can see SF1A, and this. So there are two categories in NID University. Sorry, for three categories. First of all, a merit category in which you can get the seat on your merit. There are many fields available. After giving the test, you will get a merit number. Like it happened like this. आपके फर्स्ट ईयर में परसेंटेज 60 है, ठीक है, 60 परसेंटेज है, उसका 50% वेटेज निकालो तो 30 बनता है, और 100 मार्क्स में, टेस्ट के 100 मार्क्स में से आपके मार्क्स आ रहे हैं 80, तो 80 का 50% वेटेज निकालो तो 40 बनता है, तो 40 ये टेस्ट के, 30 आपकी फर्स्ट ईयर परसेंटेज है, आपकी 70 परसेंटेज बन गई है, ठीक है। 70 परसेंटेज में आपका मेरिट बनता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे ऊपर होंगे, बहुत सारे आपसे स्टूडेंट्स नीचे होंगे, ठीक है। तो आपका मेरिट तकरीबन, मैं अगर 70 पे आप पूछोगे क्या बनेगा सर, तो मैं बोलूंगा 1200 के अराउंड बनेगा, या 12 to 1500 के अराउंड बनता है। ओके, इतना नीचे बनता है 70 परसेंटेज में मेरिट। अब और ज्यादा चांस है कि आप और ज्यादा नीचे बनेगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो आप मेरिट बढ़ा सकते हो, ये चांस है स्टूडेंट के पास। पहले नहीं होता था, पहले टेस्ट का कोई रोल नहीं होता था एनआईटी यूनिवर्सिटी के, सिर्फ आपकी परसेंटेज जितनी आ गई उस पर आपको उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनती थी। अब होता यह है कि मेरिट लिस्ट बन गई, आपका 1200 नंबर है, अब ये सारी सीट्स स्टूडेंट के पास आती हैं जब वो इंटरव्यू के लिए उसको बुलाते हैं।
ठीक है, मेरिट नंबर बन जाता है, सबको स्टूडेंट को पता लग जाता है मेरा ये मेरिट नंबर है। फिर कॉल लिस्ट लग जाती है एनईडी की वेबसाइट पे कि 1 से लेकर 200 बच्चे आज इस तारीख को आएंगे एनईडी यूनिवर्सिटी में, ऑडिटोरियम में बुलाते हैं। पहले फर्स्ट नंबर मेरिट जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है बनी होती है, जैसे आपकी 70 बनी है, मैंने आपको एग्जांपल दी, तो जिसकी 90 बनी होगी वो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट मेरिट नंबर मिला वो आएगा। उसके पास ये सारी फील्ड्स ओपन है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये सीई फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स ओपन है। ठीक है, वो जो फील्ड लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है, सारी फील्ड्स ओपन है। फिर इस तरह आहिस्ता 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 करके फील्ड खत्म, उसने एक सीट ली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अगर 120 सीट्स थी तो एक सीट कम हो गई, 119 हो गया। दूसरा जो नंबर, दूसरा मेरिट नंबर वाला बच्चा जाएगा, उसके सामने 119 सीट्स आ रही होगी सॉफ्टवेयर, वो भी ले लेगा सॉफ्टवेयर। इस तरह तकरीबन जो सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है, पहले 300 बच्चों में सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है क्योंकि सीट्स 120 तकरीबन होती है। ठीक है, तो इस तरह फिर डिपार्टमेंट खत्म हो गया। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट, जब नीचे बहुत आपका मेरिट नंबर होता है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके आने तक उसकी सीट्स खत्म हो चुकी होती है। बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट है, अगर आपका 1200 मेरिट नंबर है तो आधे डिपार्टमेंट्स आपसे जा चुके हैं, उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। अब जो बच्चे खुचे होते हैं उनमें आप, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये रोजाना एकेडमीज बता रही होती है कि आज इतनी सीट्स रह गई, इतनी से आप उसमें देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अब कौन सी फील्ड्स बची है, आज मैं जाऊंगा तो कितनी फील्ड्स बची हैं, कितनी सीट्स रहती हैं। ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये होता है, मेरिट की बात कर दी मैंने आपसे। अब इसमें एक ऑप्शन होता है सेल्फ फाइनेंस। 7,50,000 रुपीज अगर आप देते हो तो सिक्योर करते हो सीट से, सीट सिक्योर कर लेते हो। तो अगर आपकी 70% है तो उस पर आप मैकेनिकल भी ले सकते हो, वरना 70% पे आप मैकेनिकल नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि मैकेनिकल भी 500 मेरिट नंबर तक खत्म हो जाती है, तकरीबन 82% पे खत्म हो जाएगी मैकेनिकल, आप नहीं ले सकते। आपकी 70% बनी है और 500 मेरिट नंबर तक मैकेनिकल खत्म हो जाती है, पक्की बात है। ठीक है, तो अब आप नहीं ले सकते, लेकिन आपको मैकेनिकल, तो आप सेल्फ फाइनेंस के पैसे जमा करा दो 7.5 लाख एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। ये पहले ही ऑप्शन होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर रहे होगे सेल्फ फाइनेंस के लिए, आप पैसे जमा कराओगे 7.5 लाख। उस पे दोनों ऑप्शन होते हैं, आप दोनों कैटेगरीज को टिक करोगे। R1A इज फॉर रेगुलर मेरिट कैटेगरी। ठीक है, आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। तो R1A जो ये रेगुलर कैटेगरी है फॉर मेरिट स्टूडेंट्स जो मेरिट में करना है। अच्छा, SF1A नीचे आएगी, ये SF1A, ठीक है, ये नजर आ रही है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। इसमें मैकेनिकल की सीट्स हैं 25 सीट्स है मैकेनिकल की, सॉफ्टवेयर सेल्फ फाइनेंस पे। ठीक है, ये फील्ड्स के साथ सीट्स लिखी हुई हैं, आप देखें। छोटा सा ये सी का मतलब सिविल इंजीनियरिंग, यूई का मतलब अर्बन इंजीनियरिंग, पी का मतलब पॉली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सीएन का मतलब है, एमई का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टी का मतलब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, आईएम का मतलब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो इसकी सारे नीचे इसकी सीट्स लिखी हुई है, एक सीट है सिविल इंजीनियरिंग की सेल्फ फाइनेंस पे। ठीक है, 4 सीट्स हैं, सॉरी वो नहीं, SF1A देखेंगे आप। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी, ये बाकी सारी कैटेगरीज दूसरी। ठीक है, तो अब 70% में अगर आपने सेल्फ फाइनेंस जमा करवाया, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। फिर मेरिट पे आपके पास नजर आ रहा होगा कि आपके पास मेरिट पे ये सीट्स बाकी है, सेल्फ फाइनेंस पे सीट्स जो बाकी होती है वो अलग शो हो रही होती है। तो आप देखोगे इसके सेल्फ, आपके पास चांस होगा मेरिट पे मुझे ये फील्ड मिल रही है, सेल्फ फाइनेंस पे मुझे ये। सेल्फ फाइनेंस पे अगर आप मैकेनिकल लेने चाहते हो आप ले सकते हो। आप बोलो नहीं मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, मैं मेरिट पे ही लूंगा, तो आप मेरिट पे कोई भी फील्ड ले लो, आपको वो 7.5 लाख आपको वापस मिल जाए। 7.5 लाख ये नहीं होता कि आपके गए अगर जमा करा दी, आप जमा करवा दो अगर चाहते हो सेल्फ फाइनेंस पे लेना। ठीक है, ताकि मैं अच्छी फील्ड ले लूँ, 7.5 लाख देके अच्छी फील्ड ले लूँ। 7.5 लाख सिर्फ एक बार देने होते हैं शुरू में, बार बार नहीं देते, बाकी हर सेमेस्टर आपको फीस देनी होती है जो कि 20,000 है एनआईटी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, समझ आ गया होगा होपफुली। आप कम परसेंटेज पे अच्छी फील्ड ले सकते हो और कोई मसला नहीं होता, आप वापस ले सकते हो, पैसे वापस ले सकते हो। अगर आप मूड चेंज हो गया, नहीं कोई और यूनिवर्सिटी में जाना है, पैसे वापस दे देती है एनआईटी। अच्छा, एक और होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में होता है 9.5 लाख। 9.5 लाख में क्या करना होगा कि उस पे आपकी अगर 65 भी परसेंटेज है तो स्पॉन्सर की भी हर डिपार्टमेंट की 1-2 सीट्स होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 10 होती है। ठीक है, तो अब स्पॉन्सर पे क्या होता है, अगर 65 परसेंटेज है उसमें और कम
कम आपकी परसेंटेज हो तो उस पर आपको अच्छा डिपार्ट 65% या आपके पास आपका मेरिट बनेगा 1800 या 1700, ठीक है, 2000 टोटल बच्चे होते हैं, तो इतना कम मेरिट नंबर बनेगा आपके पास। जब आप मेरिट पे देखोगे आपके पास सारी फील्ड्स खत्म है, सिर्फ बीएस की कुछ फील्ड, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, इस तरह की बची होगी, तो ये स्टूडेंट का लेने का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है, वो या सोचेगा मैं किसी और यूनिवर्सिटी में, या दूसरा ऑप्शन ये कि आप पैसे देके सीट ले लो। पैसे देके सीट लेना मतलब ये एक एनईटी ने एक अलग ऑप्शन रखा हुआ है, वो गलत नहीं है, अगर आप पैसे हैं आप ले सकते हो तो ले लो। आपको एनईटी में पढ़ना है, अच्छी फील्ड में पढ़ना है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ फाइनेंस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सेल्फ फाइनेंस में अच्छी फील्ड में ले लो, एज कंपेयर टू कि ये आप कोई गंदी फील्ड में ले लो। अगर आपका मेरिट नंबर गंदा बनता है तो कम परसेंटेज है तो मेरिट नंबर नीचे ही आएगा। तो सेल्फ फाइनेंस को भी ऑप्शन रखो, अगर अफोर्ड कर सकते हो जमा करवा देना, फिर उस वक्त भी आप सोच सकते हो पैसे जमा करवा देना, बाद में सोच लेना, पैसे वापस मिल जाते हैं। उस वक्त आपके पास एंड तक ऑप्शन होता है, जब तक आप फील्ड सेलेक्ट करते हो, आप बोलो सेल्फ फाइनेंस वाली नहीं लेता मैं मेरिट वाली ले रहा हूँ, मेरिट पे मैं ये ले रहा हूँ, सेल्फ फाइनेंस वाले पैसे वापस हो जाएंगे। तो इस तरह आप सेल्फ फाइनेंस, इसी तरह स्पॉन्सर की अलग सीट्स होती है, स्पॉन्सर में भी, और स्पॉन्सर में और सेल्फ में हर महीने एक ही फीस होती है 20,000, जो नॉर्मल मेरिट वाले बच्चों में सिर्फ इनिशियल में आपको एडमिशन के वक्त आपको इतने पैसे जमा करवाना है। अब मैं आपको बताऊंगा एनईडी का टेस्ट किस तरह होता है। हमारी एल क्लास टीचर अकेडमी ने भी इसी तरह जो हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं ऑनलाइन, स्टूडेंट जो हमसे कर रहे हैं उसको बिल्कुल उसी तरह एनईडी की प्रिपरेशन की तरह के साथ हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो इधर हम लोग जैसे स्टूडेंट, ये चैप्टर 1 का टेस्ट है, हम जो स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं, तो ऐसे ही आपका एनईडी का टेस्ट होगा, आप नाम डालोगे, तो मैं नाम डाल देता हूँ अली क्लास एकेडमी, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल टेस्ट होगा आपका। एनईडी यूनिवर्सिटी जब जाओगे आपके कंप्यूटर पे बिठा दिया, आप कंप्यूटर पे पहले अपने नाम डालोगे, रोल नंबर डालोगे, सीट नंबर डालोगे, ये सब हो जाएगा, नेक्स्ट कर दोगे, फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। देखिए ये टेस्ट हमारा शुरू हो जाता है, हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, वो हमारे सामने बैठ के कर रहे होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस तरह होगा, ठीक है। अब आपका टेस्ट शुरू हो गया, ये ए क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए, ठीक है। इधर टाइम भी चल रहा होगा साइड पे, ठीक है, कि 1 घंटे का टेस्ट है, इसमें 100 MC, 2 घंटे का टेस्ट होता है, 100 MCQs होते हैं, और किस तरह करना है। अब ये दूसरा सवाल आ गया, इसमें ऑप्शन ए कर दिया, तीसरा ऑप्शन बी, सवाल पढ़ेंगे आप, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इस तरह बिल्कुल जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह एनईडी का टेस्ट आएगा आपके पास एज इट इज। तो हमारी एकेडमी ने इसी तरह स्केड्यूल किया हुआ है जिस तरह एनईडी ने टेस्ट लेना है, कंप्यूटर बेस्ड हम लोग स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं उसी तरह टेस्ट ले रहे हैं, ताकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो, बिकॉज ये न्यू चीज है, न्यू फेज ऑफ टेस्ट है, स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद दिस फेज, और स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि किस तरह होगा। पेपर बेस की हमें आदत होती है, कंप्यूटर का हमने कभी यूज ही नहीं किया होता, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इंटर तक कंप्यूटर देखा ही नहीं होता, हाँ गेम तक रखा होता है कंप्यूटर को बस, ठीक है। एनईडी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, वो इस चीज से फेमिलियर है, क्योंकि मैं खुद एनईडी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो हम लोगों ने ऐसे टेस्ट बहुत सारे दिए हुए एनईडी में कंप्यूटर लैब में बैठ के। अच्छा, एनईडी का टेस्ट इस तरह होगा कि 100 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे एक दिन में, मैंने ये बताया नहीं आपको, 100 स्टूडेंट्स में को एक दिन में बुलाया जाएगा, और उनसे एक हर बच्चे को अलग कंप्यूटर पे बिठा दिया जाएगा, और उनके पास इस तरह का टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, और 2 घंटे दिए जाएंगे, और आपको इस तरह पूरा टेस्ट कंप्यूटर पे करके सबमिट कर देना है, बस बाकी रिजल्ट वो फिर आपको भेज देंगे घर पे, ऑनलाइन आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी आप कितने नंबर आए हैं, बस इस तरह टेस्ट होगा। क्योंकि पहले 10,000 स्टूडेंट्स तकरीबन टेस्ट देते हैं एनईडी के ग्राउंड जो है, तो इतना बड़ी स्टूडेंट्स की तादाद एक जगह पे जमा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो एनईडी ने ये अनाउंस किया कि 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम हम लोग एक दिन में बुलाएंगे, कंप्यूटर पे बैठाएंगे, और इस तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो हम लोग वैसे ही स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा रहे हैं, ये सारे इस तरह आप कर लोगे। हर चैप्टर के तकरीबन 25-30 MCQs हमने बनाए, इसके 25 MCQs हैं, 25 मार्क्स आपके ऊपर आ रहे हैं, 1 पॉइंट का सारे सवाल होंगे, कैलकुलेटर आ रहा होता है, ठीक है। ये सारे इस तरह हम लोगों ने हर चैप्टर के इस तरह बनाए हुए, स्टूडेंट हमारे सामने करता है, फिर हमें पूरी रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा, ये सारा मैं आपको ऐसे ही शो कर रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर रहे हो, इफ ए एंड बी एनी टू, चैप्टर 1 सेट्स है फर्स्ट ईयर का, तो कंप्लीट कर लिया आपने, सबमिट कर दोगे, ये सबमिट हो गया, आपका टेस्ट इधर खत्म हो गया, आप घर चले जाओगे। एनईडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने ये स्टूडेंट को देखने के लिए वी स्कोर, ये हमारे पास वी स्कोर आ जाता है आपके नाम के साथ, पहले आपने नाम डाला ना, मैंने क्लास अकेडमी डाला, आपने डाला अली, आपका नाम आ गया, उसके साथ आपका जितना स्कोर है हमारे पास सबमिट हो जाता है। फिर वी स्कोर आपको खुद करना है तो आप देख सकते हो,
व्यू स्कोर करोगे, आपके पास स्कोर आ जाएगा आपके 25 मार्क्स में से कितने सवाल सही है। तो मेरे 8 सवाल सही है, जो मैंने ऐसी टेक मारे उसमें से 8 सही हो गए हैं। देखें आपका नाम आ रहा है, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहे होते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत। तो ये 1 आउट ऑफ 1 मेरे मार्क्स आए हैं इसमें। इसका ऑप्शन ए सही था, इसका ऑप्शन ए भी सही था, 1 आउट ऑफ 1 आए हैं। इसका भी सही था, ये गलत था, 1 आउट ऑफ 0 मार्क्स आए हैं। और इसका सही ऑप्शन भी हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए शो किया हुआ है, क्योंकि हम प्रिपरेशन फेज में और स्टूडेंट को तैयारी करवा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये एक्चुअल टेस्ट में नहीं होगा, ये चीज जो है सबमिट करके आपको घर चले जाना। टेस्ट का रिजल्ट भी शो नहीं करता एनईडी में, क्योंकि हम जब एनईडी के में पढ़ते थे तो तब भी ऐसे ही होता था कि टेस्ट का रिजल्ट शो नहीं होता था, टीचर्स बाद में हमें बताते थे। तो आपके साथ भी यही होगा। तो जो सवाल गलत होगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो सही होगा उस पर ग्रीन टिक होगा, 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स मिले होगा। और इस तरह आपके पास फुल मार्क्स शो हो रहे होंगे, ऊपर 25 में से 8 मार्क्स आए हैं। तो दिस इज हाउ एनईडी विल बी टेकिंग टेस्ट। एनईडी इस तरह टेस्ट लेगी, दाऊद टेस्ट इस तरह लेगी। एनईडी और दाऊद ने अनाउंस कर दी है, बाकी यूनिवर्सिटीज भी इसी तरह टेस्ट लेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, एक जगह जमा नहीं कर सकते, एक बड़े हॉल में भी जमा नहीं, पेपर्स नहीं हुए आप लोगों के इसी वजह से नहीं हुए क्योंकि ये सिचुएशन। तो सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, आपको कंप्यूटर पे बिठा कर होंगे। तो इस तरह कंप्यूटर बेस्ड तैयारी करें। हम हमारी एकेडमी ने पूरा सॉफ्टवेयर इस तरह लॉन्च किए जिसकी वजह से हम सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो ये थोड़ा एनईडी का टेस्ट का इंट्रोडक्शन था और शीट्स के हवाले से। थैंक यू। अगर जो स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं वो मैसेज कर दे, उसके बाद फिर उनका